नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी अग्रवाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डायरेक्ट टू पब्लिक पर। आज हम आपको ले चल रहे हैं ब्रैम्पटन के एक ऐसे पवित्र स्थान पर जहां भक्ति और शांति का अनोखा संगम देखने को मिलता है। ये है ब्रैम्पटन का गुरुवायूरप्पन टेम्पल, एक ऐसा मंदिर जहां विराजमान है भगवान श्री कृष्ण का दिव्य चतुर्भुज रूप। यहाँ की पारंपरिक साउथ इंडियन आर्किटेक्चर और शुद्ध स्पिरिचुअल वाइब्स आपके मन को मोह लेती है। अगर आप भी शांति, आस्था और पॉजिटिविटी की तलाश में हैं, या आप भगवान कृष्ण के अलौकिक चतुर्भुज रूप के दर्शन करना चाहते हैं, तो ये जगह आपके लिए है। तो इस बहुत ही खूबसूरत कृष्णा टेम्पल को, यानी कि गुरुवायूरप्पन टेम्पल का जो हमें आज पूरा दिखाने वाले हैं, वो हैं हमारे कृष्णा जी। कृष्णा जी आज हमें दिखाएंगे कृष्णा टेम्पल। सो आइए कृष्णा जी का स्वागत करते हैं। कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें यहाँ बुलाने के लिए और आज समय देने के लिए। तो हम आज इस बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक टेम्पल गुरुवायूरप्पन टेम्पल को जानना चाहते हैं कि इसके बारे में थोड़ा बताएं कि इसकी हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई और ब्रैम्पटन में कब प्रस्थापना आपने इसको सोचा करने का? So long time back, when Lord Krishna's father Devaki and Vasudevji, so they had a murti of their own, and that was a Chaturbahu's Vishnu's murti, which has been handed over to them from generations. So they were praying to this murti, and during the last stage after the Mahabharata war, what happened was Krishna had a premonition saying that the whole Yadava clan would be fighting with each other, and the entire Dwaraka would be submerged under the sea. Pralay ki sambhavana ho sakta hai. So what happens during the time is Krishna calls his friend Uddhav, his cousin, and tells him, Uddhav, this is going to happen. The whole Dwaraka is going to be submerged under the ocean. So, and this particular murti will be coming floating up. So can you do me a favor? Can you take the murti and hand it over to someone responsible so that the murti can have a murti sthapana in some place which is much more stable. So similarly, as Lord Krishna predicted, there's a huge pralay happening in Dwaraka, the whole city goes under, and after a few days this murti comes floating up, and Uddhavji finds this murti and he takes the murti and he hands it over to the Guru of Devas, Brihaspatiji, and tells him, Guru Deva, can you help me install this murti? So Brihaspatiji walks along and gets the help of Vayudev, the wind god, and they both come down south to find a place which is much more stable and suitable to construct the Prana Pratishtha of this idol. And finally they find a small place in the Parakshurama Kshetra of the modern Kerala, and they decide to construct a beautiful temple there, and they put the Murti Sthapana. Since both the Guru and Vayu constructed it, the place was called as Guru Pavanapuram. Later, Guru Pavanapuram was condensed and was made into Guru Vayur. Ur hota hai Tamil mein town. Okay, that's how the name Guruvayur came. So when a lot of South Indians started coming from South India to Canada, they had a small desire. Why can't we reconstruct a temple of the same style here, with the same architecture, with the same very similar murti, so that everybody will have a darshan of Lord Krishna. So this idea came to your mind in 1991 and 1992. So that was quite like 36 years back, right? That's so amazing. This idea came to them, and they conceived the idea, and slowly they worked towards it. And that's how the whole beautiful temple which you see here, the Guruvaയൂരപ്പൻ temple of Brampton, came into being. So this is constructed in a very similar fashion of Guruvayur temple in Kerala. You have the main Pratishtha, the Mahavishnu, which is worshipped as Lord Krishna, because Krishna is one of the avatars of Mahavishnu. And on the other side, you will find Ganapati Dev, Ganesh Ji, और स्वामी अय्यप्पन का मंदिर भी है, छोटा सा मंदिर भी है. इधर you have देवी माता की मंदिर. And this is constructed in a very similar fashion of Guruvayur. मैं कृष्णा जी, मैं गया हूँ गुरुवायूर टेम्पल केरला में, एंड इट्स अमेजिंग, ब्यूटीफुल. मुझे याद है वहाँ बाहर आपको अपने कपड़ों में नहीं जा सकते, सो यू हैव टू चेंज योर क्लोथ्स. तो वहाँ धोती लेकर और ऊपर अंगवस्त्र डालकर मैं उस मंदिर में गया था, एंड इट्स अमेजिंग. अगर आज आप हमारा इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और अगर आप गुरुवायूर टेम्पल में नहीं गए हैं, जो कि साउथ इंडिया केरला में, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए. और अगर आप कनाडा में आ रहे हो, तो आज जिस टेम्पल में हम आए हैं, गुरुवायूर टेम्पल का ही सेम स्टाइल, सेम पॉजिटिवनेस यहाँ पर भी मिलती है.
तो आइए इस मंदिर को और देखते हैं और यहाँ पर भी आपको जरूर दर्शन के लिए आना चाहिए। तो कृष्णा जी से और जानते हैं इसके बारे में कि 1991 में ये आपने शुरुआत की इस टेम्पल की। या इस आइडिया है ना जी, वो 1991 में कंसीव हो गया था। ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ कि people started working on it. They had to do a lot of research, find a good location for a mandir, and they wanted to build the mandir in the same agamic, tantric, and Veda Shastra style. So they had to find a location, and there was quite a lot of steps involved to construct it. The beauty about this temple is, this temple, if you directly go and look at the basement, you will not find a basement where the Murti Stapara is there. Okay. The reason is there is something called as a Shadadhara Pradishta, which happens from the ground above. So you have a huge Adhara Shila. On top of the Adhara Shila, you have a huge Nidhi Kumbham. On the Nidhi Kumbham, you have a Padmam, then you have a Kurmam, then you have a huge, long Yoganalam. Then comes the Napunchaka Shila. So the Murti sits on the Shila, and the whole energy is coming from the ground, from the Bhudevi. So how many levels are there? There are 7 levels altogether, and that 7 levels shows the different layers of your Kundalini, from Mooladharam all the way till Sahasraram. Wow. And when you look at the temple is constructed in a manner that it represents a human being. वास्तु पुरुषा कहते हैं हम उसको. So पूरा कुछ वास्तु शास्त्र भी हुआ था. And do you know what this elephant is? हाथी? Yes. Guess what this is? Elephant. Elephant, exactly. So it's a miniature version of the elephant, which is suited to our Canadian atmosphere and weather. क्या होता है ना जी, जो प्रतिष्ठा है अंदर, वो प्राण प्रतिष्ठा है. Yeah. So that prana pratishtha cannot be moved. So it's fixed. Yes. So what happens during the Utsavam is when the Sriveli कहते हैं हम उसको. So when the Sriveli happens, this whole thing moves. So there is a small murti called Utsava Murti, which is taken, which is put on top of this elephant, and with all the melams and everything. So they go around the temple. Oh wow. So ये जो एलिफेंट है ये सवारी है भगवान की. तो भगवान जब उत्सव होते हैं यहाँ पर, तो भगवान यहाँ पर विराजते हैं और इस एलिफेंट के द्वारा वो परिक्रमा करते हैं इस टेंपल के अंदर. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल. आपके यहाँ पे कौन कौन से मेन प्रोग्राम होते हैं? सालाना प्रोग्राम या मंथली प्रोग्राम कौन से बेस्ट? बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जी, क्योंकि in the month of June, July, we have the Utsav, Maha Utsav. That is the day when we have the Prana Pratishtha, and every annual event during that time we have the Maha Utsav. तो आइए अब कृष्णा जी से कुछ और बातें जानते हैं इस टेंपल के बारे में. कृष्णा जी पहले तो ये बताएं कि इसकी मैनेजमेंट में कौन कौन है, क्या कोई यहाँ पे उपस्थित है जिनसे आप मिलाना चाहेंगे हमें भी? या ठीक है जी. हाँ, आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बहुत सारे है. इधर डॉक्टर कुटी है, टेंपल की प्रेसिडेंट है. और राधा कृष्ण जी है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है. और उसके साथ विश्वनाथन जी भी है, और दिवाकरन जी भी है, और गोपी जी भी है. हम सब प्लेजर कि आज यहाँ पे मंदिर के प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं और उनके डायरेक्टर्स भी काफी मौजूद हैं मैनेजमेंट के. तो आइए उनसे कुछ बात करते हैं और इस मंदिर के बारे में जानते हैं और उसके बाद लेते हैं परिक्रमा पूरे टेंपल की. सो वी आर वेलकमिंग डॉक्टर कुटी. ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ नमस्कार. थैंक यू सो मच. टेंपल ऑफ ब्रैम्पटन. Now we have the executive director, Radha Krishna ji. Hello sir, thank you. Then one of the board of directors, Divakar ji. I know him. Our Gopi Menon ji. Namaskar sir. Thank you sir. Our Vishwanath ji. Thank you sir. Nice. I was asking him about the Pran Pratishtha and the history of temple. He told me a lot about it. Yeah. And just I want to know, like, what are the most auspicious programs of this temple? So once in a year, or there are quite few. It's a every day continuous thing. It's like so 3 times we are conducting pujas and all. But in case we want to start from the beginning, so it's in the early 1990s. That is when this community realized that there was no temple like the one in Kerala. So we were friends, Vishwanathan and a few other 5 of us. The family got together and they were thinking they want a Krishna temple like the one in Kerala. And for us, the model was the Guruvayur temple in Kerala, where Krishna is the main deity. Then we have Ganapati, Ayyappa, and Devi or Kali. So that we want to follow exactly the same principle. So we did not know how to begin. So we went to Guruvayur and just met with various scholars and all that. Then we were told
that you have to have a tantri or a chief guide and priest to help you through, and it is because of that person's knowledge and dedication that a temple will become a reality. So there was a gentleman who had returned from North America to Kerala at the time, and his name is Divagaran Nambudiri, and he was recommended, and we approached him, and he agreed to come. So that is the first contact we had about the temple. But the whole thing started in a small meeting in his basement here in Brampton. Okay. And then that is one part of it. Then we had no land at the time. So we as a group were looking, and eventually in 1999, we found a 10-acre land here. We bought it, and then all the shareholders agreed to give a 2-acre land free of cost to the temple. That's how we registered a Guruvayur Corporation, and subsequently we registered a charitable organization called Guruvayurappan Temple of Brampton. So several years it took for us to build go and through everything. Yes. So we went through. Before that, we had to have to prepare the land. So we have preparing the land with pujas and all the necessary things, and it was plowed ceremoniously, and we saw the navadhanyas. On what day you inaugurated this? This was originally we started in 2006. That's when the priest came. 2007 we had the first pradishta. First pradishta is this charab pradishta is called, temporary pradishta. So the Krishna in the little boy's, and he was installed in a small farmhouse. Okay. And we had brought a Panchaloha statue from India. Our own priest had brought it, and they installed it ceremoniously. So what is the exact date of inauguration of the entire temple? That when we started, Yes. The inauguration of this temple. No, this started in 2019. That's when the 19. full pradishta. Oh wow! It took 20 years. 20 years. Whoa. Before that, it has gone to various stages. You see, even in this stage, in 4 or 5 years before that, we had a Shadadara pradishta. So we dug ground and built from ground. So this is a 2-acre land. The whole area was a 10 acres. Yes. 2 acres was given, and in that, this is 8,000 square foot platform. That is temple square footage, and in that location was chosen appropriate for Lord Krishna. Yeah. And from there we took all the measurements. Yes. And we started building it, and the whole construction was completed in 2019. That is when the full pradishta took place. So 1991 में एक सोच थी कि हमने एक टेंपल बनाना है, और उस टेंपल को बनाने के लिए 5 परिवार मिले। 1999 में उन्होंने एक लैंड बाय की 2 एकर्स, जो कि एक 10 एकर्स का लॉट था, उसमें से 2 एकर्स लैंड बाय की। उस 2 एकर्स में गुरुवायूरप्पन टेंपल, जहां पर आज हम खड़े हैं, इसका निर्माण हुआ। और निर्माण इतना आसान नहीं था। एक 7 समुंदर पार दूर देश में जाकर मंदिर का निर्माण करना अपनी आस्था के अनुसार एक बहुत मुश्किल कार्य था, जिसके प्रोसेस में 1999 से 2019 में ही, यानी कि 20 साल लग गए इस मंदिर को पूर्ण रूप से शुरू करने के अंदर। पर इसके अंदर इन परिवारों की बहुत मेहनत है, बहुत आस्था और बहुत भक्ति है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ इसके लिए कि बहुत ही आस्था और भक्ति के साथ आपने ये टेंपल बनाया है। इट्स रियली माय प्लेजर दैट आई एम हियर टुडे एंड मीटिंग यू ऑल। थैंक यू सो मच। We want to add the artisans. 5 of them came from Kerala. Yeah. They stayed here for 2 years continuously, and they built all these structures. Wow. Exactly they do in Kerala. So आइए अब आगे चलते हैं और जानते हैं इस मंदिर के थोड़े से आर्किटेक्चर के बारे में। बहुत ही खूबसूरत है ये मंदिर का आर्किटेक्चर, आप देख सकते हो मेरे पीछे। तो इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर राधाकृष्णन जी। तो राधाकृष्णन जी, एक बार फिर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। और थोड़ा बताएं इस मंदिर का जो 1999 के अंदर आप लोगों ने ये लैंड शुरू किया, उसके बाद 2019 के अंदर ये कंप्लीट हुआ। तो इसके बीच में जो इतना सुंदर आर्किटेक्चर आप लेकर आए, ये आर्किटेक्चर कैसे आप लोगों ने कनाडा में इतनी दूर बिल्ड कैसे किया, इसके अंदर क्या क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताएं थोड़ा सा।
So when we started, our idea was to build a temple exactly like Guru Ayyappan temple in Kerala. So we had an architect from Kerala, temple architect, Okay. who was engaged with us. In addition to that, we had a local engineering team, consulting team also involved. So they worked together to design this temple first. And accordingly, we had to get a lot of special equipment, special things from Kerala, which includes, if you see the front of the temple, this is all made out of stone. So they were imported directly from Kerala. Wow. Each of these, whatever you see in this structure, the base structure, and all the profiles that you see, they were all imported from Kerala. We had 6 containers of stuff coming in from India. And then we brought in, like earlier Dr. Kuti mentioned, we had artisans from Kerala who stayed with us for 2 years to build this temple the way it is now. So it is built exactly according to the Kerala architect's requirements. The only thing that we have to make sure that it also meets the city requirements, the local government rules. So that's how this was built. So the structure that you see is unique in its nature, and that's what we are proud of, because this is not available anywhere else. Oh, you should be. It's amazing. It's awesome. So ये जो मुझे brass का दिख रहा है, is it brass or what? It is brass. It is copper. Brass? Copper. It is copper. Okay. It is also locally done by a local contractor. So मेरे साथ अब हैं हमारे विजी मैम, जो कि यहाँ मैनेजर हैं, जो सारा मैनेज करते हैं टेम्पल को, और विजी मैम से जानते हैं कि पूरे इस मंदिर की दिनचर्या क्या रहती है. So विजी मैम, what is the routine of this temple? Like when it's opens, it starts, puja, prasad. Just tell me something about that. Okay. Right now we are open 7 to 10 in the morning on weekdays, and weekends 7 to 12 in the morning, 4 to 8 in the evenings. Weekdays we open 5 to 8 in the evenings right now. As of April 1st, the timings are going to change. So we'll be opening 6 in the morning till 10 during the weekdays, evenings 5 to 9, and weekends 6 to 12, and evenings 4 to 9. What are your puja timings like? Puja timings in the morning, it's around maybe 7 o'clock. And then before they close, they do another puja called Ucha Puja. And then evening at 7 o'clock. Okay. During. So दिन में यहाँ पर 3 बार पूजा होती है, या पूजा कहें तो आरती होती है. The first is around 7 a.m. Then it's 10 a.m. and then it's in the evening 7 o'clock. So प्रसाद वगैरह, like how you manage प्रसाद? आपकी अपनी किचन है या बाहर से कैटरिंग कराते हैं? We get the food and we pack it and leave it outside. Okay. और जो भगवान का प्रसाद है वो? That the priests make in their kitchen. Wow. So मंदिर में ही किचन है? मंदिर में ही किचन है? Yeah, So inside. जिसके अंदर जो यहाँ ब्राह्मण है वो अपनी किचन के अंदर भगवान का प्रसाद स्वयं बनाते हैं, और जो मंदिर की रसोई में, यानी कि कृष्ण रसोई में, श्याम रसोई में जो प्रसाद बनता है उसी का भगवान को भोग लगता है, और जो पब्लिक के लिए प्रसाद आता है वो सारा बाहर से ही आता है, कैटरिंग होता है, और वो उसके बॉक्सेस बनाकर ये लोग प्रसाद के बाहर काउंटर की तरफ रखते हैं, तो जो भी लोग जाते रहते हैं वो प्रसाद अपना ग्रहण करते रहते हैं. सो आइए जानते हैं इस टेम्पल के बारे में और बहुत कुछ, और एक छोटा सा टूर लेते हैं इसका अब धीरे धीरे हम लोग, और चलते हैं आगे की तरफ. सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने टाइम दिया, और थोड़ा सा अब हम टूर लेंगे दोबारा कृष्ण जी के साथ, और फिर मिलते हैं आपको बहुत जल्दी. Thank you very much. जय श्री कृष्ण. धन्यवाद. सो हमने अभी विजी से जाना थोड़े से रूटीन के बारे में, और आइए अब दोबारा वही प्रश्न हम करने वाले हैं जो हमारे राधा कृष्ण जी हमारे साथ हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कि कुछ और बताएं. यहाँ पे जो दिन में 3 बार आरती होती है ये तो हम समझ गए कि 3 बार आरती होती है, उसके अलावा क्या क्या प्रोग्राम्स हैं मंदिर के, और क्या क्या कार्य रहते हैं मंदिर के, कैसे लोग आते हैं पूजा करते हैं, या कैसे बुकिंग करते हैं पूजा की, कोई सिस्टम क्या है वो? तो हमारा मंदिर जो टाइम ओपन टाइम में पूरा पूजा कर सकता है. जो लोग डिवोटीज जो आता है, हाँ जी, वो लोग को पूजा का लिस्ट है, उसके हिसाब से इधर टेम्पल का ऑफिस में बुक कर सकता है, और वो वही टाइम पे करके प्रसाद दे देंगे. ओके. नहीं मतलब जैसे मैं आया, मैंने आने के बाद अगर पूजा बुक करनी है तो मुझे उस काउंटर की तरफ जाना होगा. आपको काउंटर का अंदर लेके जाके पूजा करके ओके. प्रसाद वही टाइम पे दे देंगे. वाह. तो यहाँ का सिस्टम है वो कुछ ऐसा है कि आप मंदिर के अंदर आते हो, बुकिंग काउंटर पे जाते हो, वहाँ पर जो भी आपको
प्रसाद या जो भी पूजा करनी है उसका वहाँ पे आप एक टोकन लेते हो। टोकन लेकर आप मंदिर में पहुँच के वहाँ पर उसको सीढ़ियों में जो मंदिर का द्वार है, चौखट है, वहाँ रख देते हैं और वहाँ से प्रीस्ट उसको लेके जाता है और जो भी उसके अकॉर्डिंग जो भी पूजा लिखी गई होती है वो पूजा प्रीस्ट आपको करके देते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से आपके यहाँ पे प्रीस्ट को टच नहीं करते कुछ, है ना? बिल्कुल प्रीस्ट को टच नहीं करते, है ना? टच नहीं करते हम लोग, हाँ। उसको भी नहीं, वो हमको भी नहीं। वो हमको टच नहीं करते, हम उनको नहीं। वो स्नान करके आते हैं और स्वच्छ रहते हैं। तो ये इसके पीछे एक बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ पे प्रीस्ट को टच नहीं कर सकते। आपने जो भी रखना है वहाँ पे अर्पण कर देंगे चौखट पे, और जो प्रीस्ट है वो चौखट से उसको अंदर ले जाते हैं। सो बड़ी अच्छी बात है कि मतलब प्रीस्ट बिल्कुल नहा धो के मंदिर में उस समय पवित्र होते हैं, कहीं टचिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता। बहुत अच्छी बात है ये। लोग अगर गलती से भी टच करेगा तो फिर तो इसमें जो ये प्रसाद की जो बुकिंग होती है, क्या मतलब कोई हिसाब से, रुपए के हिसाब से होती है, किस हिसाब से होती है कि भी उसका रुपया जिस पूजा मांगता है उसके हिसाब से प्राइस है। किस तरह की, कितनी तरह की पूजा होती है? लाइक वो हमारा लिस्ट में कम से कम 25 तरह की पूजा है। ओके, पूजा है। तो लाइफ के लिए, हेल्थ तो हर के लिए, हर एक की अलग अलग पर्ची है, लाइक $11, $5, 21 कैसे होती है? वही जो पुष्पांजलि अर्चना बोलती है ना। हाँ। अर्चना हम लोग एक अर्चना ऐसा रखा है जो भी आदमी अगर उसका पास कोई भी पैसा नहीं, एक जितना यथाशक्ति हम बोलते हैं, हाँ, उतना दे सके, बाकी सबका प्राइस है। ओके। तो अभी दिवस पूजा है। दिवस पूजा मतलब पूरा दिन का पूजा उसके नाम पे करेंगे, ठीक है। उसके लिए $101 है। ओके। बट दूसरा जो पूजा है, फॉर एग्जांपल हेल्थ के लिए रोगा महाराष्ट्र, वो $21 है। ओके। फिर पढ़ाई के लिए, बच्चे लोगों का पढ़ाई के लिए वो भी है, ऐसा दूसरा एक पूजा, ऐसा बहुत है। वो हमारे पास लिस्ट है, वेबसाइट में भी मिलेगा। ओके। तो वेबसाइट का एक बार नाम बता दें आप प्लीज। गुरुवायूर.ca। गुरुवायूर.ca इनकी वेबसाइट है। आप वहाँ जाके आप इनके सभी प्रोग्राम, इनका एड्रेस, टाइमिंग्स, फ़ोन नंबर और जो भी डिटेल्स आपको चाहिए गुरुवायूर.ca पे आपको मिल जाएंगी। इसमें ऑनलाइन में भी बुक कर सकता है पूजा, इधर अगर इधर नहीं आ सकता है ऑनलाइन में बुक कर सकता है, और वो पूजा वही टाइम पे इधर करेंगे। ब्यूटीफुल। तो यानी कि आप ऑनलाइन पूजा बुक करें और अपना आपका टाइम बच जाता है, और जिस दिन पूजा है उस दिन आप आकर अपना पूजा वगैरह जो भी है करें। बहुत अच्छा। तो आपके यहाँ श्रृंगार वगैरह भी होता है, पुष्पांजलि वगैरह उस तरह का श्रृंगार वगैरह? पुष्पांजलि मेन अर्चना हम लोग अर्चना बोलते हैं, वो पुष्पांजलि है। ओके। तो ये एक प्रसाद है वो। और दीपम? दीपम होता है बाहर पूरा मंदिर का, तो उसका एक अलग, पुष्पांजलि में एडिड है, वो दीपम अलग है? वो अलग है, पुष्पांजलि प्लस अलग दीपम अलग है, और दोनों साथ में भी है। अच्छा। मैं जब केरला गया था तो वहाँ पर एक जगह है कोटकल। तो कोटकल में एक टेम्पल है, कोटकल आयुर्वेद शाला वालों का। तो मैंने वहाँ पर दीपम किया था। वहाँ पूरी दीवार के ऊपर भी वो दीपम के वो ब्रैकेट्स बने हुए थे, एंड इट्स मोर देन आई थिंक 1000 लाइट्स, या 500 से तो ज़्यादा ही थी वो लाइट्स। 500 से 1000 लाइट्स थी जो हमने जलाई थी वहाँ पे, एंड इट्स अमेजिंग। तो कभी कोई दीपम के आपके जो वीडियोस होंगे मुझे आप शेयर कीजिएगा, तो विल शो देम। हमारा इधर भी ऐसा, ये जो बाहर लाइट, हाँ जी, उसमें सब लगाता है। उसमें 3 लेवल का होता है, अभी एक ही लगाया। ओके। तो 3 लेवल में, 3 लेवल का भी लगता है पूरा। तो कुछ ऐसे वीडियोस होंगे तो आप हमें दीजिएगा, ताकि हम उसको ऐड कर सके अपने इस वीडियो में, ताकि लोग देख सके कितना सुंदर होता है वो। उसको देख के एक अलग ही पॉजिटिव, एक अलग ही फीलिंग एक डिफरेंट होती है। उसको हम शब्दों में तो बयां कर ही नहीं सकते, वो जो फीलिंग होती है। कुछ और बताएं सर। फिर हमारा मंदिर में 2-3 हर साल में स्पेशल इवेंट्स होता है। हाँ जी, हम लोग बोलते हैं। तो एक है एनिवर्सरी डे, एनिवर्सरी जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, प्राण प्रतिष्ठा का, वही दिन में हम लोग हर साल करते हैं। तो अभी ये साल में आया है 21 जून। दिस इज बाय हिंदी कैलेंडर और इंग्लिश कैलेंडर? No, we are following actually Malayalam calendar. मलयालम कैलेंडर, what we call Panchangam. वो हिंदी कैलेंडर वो एक ही है, आई थिंक हिंदी पंचांगम वो है, पंचांग को है जो डेली में बोलता है वो इंग्लिश लेके 21। तो 4 दिन का, ये साल में 4 दिन का फेस्टिवल है। हर 5 साल में हम लोग 10 दिन का फेस्टिवल करते हैं। वाओ। सो क्या करते हैं इन 4 दिनों के अंदर? आप 4 दिन को अंदर सुबह एकदम फर्स्ट डे में उसको व्हाट वी कॉल क्लींसिंग ऑफ द प्लेस, वो होता है। दूसरा दिन हर एक मंदिर के लिए स्पेशल पूजा होता है, कलशम बोलते हैं उसको। वो बाल्टी जैसा है, उसमें पानी दे के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पानी, मिल्क, घी, उसका सब पूजा होता है। हर इट्स लाइक ए फुल
refreshing of the temple. ओके, That's what it is. और कितनी भीड़ होती है उस समय, कितने लोग आते हैं हर हम साल? लोग बाहर जो पार्किंग है ना, पार्किंग सब बंद करेंगे, पूरा हम लोग टेंट लगाएंगे, पूरा लोग उधर से आएंगे, स्कूल का पार्किंग अरेंज किया है, तो कम से कम 2-4 दिन में 10,000 के ऊपर लोग आता है। Wow. More than 10,000 people visit in month of June when they have an anniversary of this temple, and it's a 4-day or sometimes it's a 10-day programs, and more than 10,000 people in Brampton in Canada, they are coming and joining in this puja. It's amazing, amazing. So देखिए सनातन धर्म जो है बढ़ रहा है, प्रेम बढ़ रहा है, और लोग श्रद्धालु इतने हैं कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे यहाँ पे इमिग्रेशन बढ़ रहा है, लोग आ रहे हैं, सब अपने इन धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं, और जो नींव इन 5 परिवारों ने रखी, उस नींव का, उस टेम्पल का सभी अपने अपने तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं कह सकते हैं, या अपनी आस्था को पूर्ण कर पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, और मैं कहता हूँ ये करने वाले ऊपर वाला ही है, कराने वाला ऊपर वाला ही है, और इसको संभालने वाला, चलाने वाला भी ऊपर वाला ही है, कि जहाँ 5 लोगों ने शुरू किया था और आज वो हज़ारों लोग आकर अपनी पूजा को सफल बना रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। Thank you.